Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing the chapter preposition and this is session 1. In this session we are doing introduction of preposition. Preposition कहते किसे हैं इसके बारे में हम इस particular session में आपको बताएंगे. Now, a preposition links nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. एक sentence में जो ये preposition है वो जोड़ता है noun, pronoun, phrases या दूसरे words को, right? और relation भी बताता है subject और object का. These are usually short words and are normally placed directly in front of nouns. और ये short words होते हैं और noun के पहले ये place होते हैं. In some cases we find preposition in front of gerund verbs. और जो gerund verbs होते हैं उनके पहले भी हम preposition को देखते हैं. Now some examples out. Prepositions के कुछ examples आप हमेशा बोलते हो while in writing you write, in speaking English you say. So here are the words. These are preposition out, in, up, on, down, at, to, with, over, under, above, into, by, of, next to, besides, between, etc. The list it's an enormous list. बहुत लंबी लिस्ट है. उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं. अभी आप जैसे जैसे चैप्टर सेशन को देखोगे तो आपको कई सारे रूल्स पता चलेंगे कि कैसे हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंस में. नाउ प्रीपोजिशन डिफाइंस मेनी रिलेशंस. मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को प्रीपोजिशन बताता है. फॉर डिफरेंट नाउन्स, दूसरे नाउन्स के लिए हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में. On the basis of relation, they show that types are as follows. तो जैसे जैसे relations वो जैसे बताते हैं उस हिसाब से उनके कितने types हैं. अब यहाँ देखो simple preposition, compound preposition, मैं numbering लिखती हूँ 1, 2. Now phrasal preposition, participle preposition and double preposition. और इसके अलावा preposition for place, preposition for time, for direction, for device, for instrument, for agent and prepositional verb. And this is prepositional verb. तो जो relation वो बताते हैं उसके हिसाब से 12 types of prepositions होते हैं. नाउ सिंपल प्रीपोजिशन, हम चूंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. तो सिंपल प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन द सिंपल सेंटेंसेस. सम ऑफ द सिंपल प्रीपोजिशंस आर इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय, अबाउट, ओवर, अंडर, ऑफ, फॉर, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग विथ माई aunt. I'm not going with my aunt. She is waiting in the park. Dad is going to the market. तो आपने देखा with, in, to ये सब simple preposition है. Now compound preposition. Compound preposition are used to join two nouns, pronouns or phrases. दो noun, pronoun, phrases को जोड़ने के लिए compound preposition का use होता है. Some of the compound prepositions are about, across, among, beside, before, above, along, inside, between, around, behind, below, beneath, etc. Example, my city is located between two mountains. I will finish the lunch before it strikes 1. 1 बजे के पहले मैं क्या करूंगा, अपना लंच पूरा कर लूंगा. बिफोर इट स्ट्राइक्स 1. घड़ी में 1 बजे के पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना लंच पूरा कर लूंगा. तो इन दिस वे यू आर सीइंग कि किस तरह से हम कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं. नाउ फ्रेज प्रीपोजिशन. Prepositional phrases are group of words having preposition indicating relationship among various elements in the sentence. See, जब आप definition आप जब जानते हो, आपको पता है ग्रामर में हर एक
और हर एक टॉपिक का एक डेफिनेशन होता है, एक टर्म का डेफिनेशन होता है। तो जो डेफिनेशन है वो आपको पता है। प्रीपोजिशन आपको पता है, जो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, जैसे फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग प्रीपोजिशन indicating relationship among various elements in the sentence. So some of the phrase prepositions are according to, an account of, in spite of, in front of, for the sake of, in order to, by means of, with reference to, in addition to, due to, etc. और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन जो है ये परमानेंट है, आप इसको हटा नहीं सकते। अकॉर्डिंग के साथ टू, एन अकाउंट ऑफ, तो आप इसको एन अकाउंट इन, एन अकाउंट और कुछ नहीं, ये जो है जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन आप कभी भी हटा नहीं सकते, यहाँ पर इनको ये ऐसे ही यूज करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई रिटर्न होम ड्यू टू कंडोलेंस इन द कॉलेज। Now, according to me, there were 3 mango trees in the garden. I work hard in order to maintain my position in the class. तो आपने देखा कहीं भी प्रीपोजिशन, जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है वो परमानेंट प्रीपोजिशन होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, वो आप नहीं हिला सकते, उसको ऐसे ही यूज करना रहता है। एंड दिस यू नीड टू लर्न। ये प्रीपोजिशन आपको लर्न करना है। आप ग्रामर की बुक में जाएंगे, आपको बहुत सारे फ्रेजल प्रीपोजिशन मिलेंगे और आपको उन्हें पूरा लर्न करना है, तभी आप बहुत अच्छे से अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नाउ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज अ पार्टिसिपल लाइक एन, ईडी और इंग वर्ब। हम एन कब कहते हैं? which acts as a preposition such as assuming, considering, bearing, given, concerning, notwithstanding, pending, during, regarding, respected, provided, etc. तो आप यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं वो आईएनजी वर्ब, यहाँ पे देखो आईएनजी वर्ब है, कंसिडरिंग आईएनजी वर्ब है, बेयरिंग आईएनजी वर्ब है, गिवन ईएन वर्ब है, गिवन जो है ईएन वर्ब है, कंसर्निंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, रेस्पेक्टेड ये ईडी वर्ब है। तो ये सब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं और इनको इसलिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हम लोग कहते हैं, राइट। प्रोवाइडेड ईडी इज देयर इन अ सफिक्स, आईएनजी सफिक्स में है और ईएन है सफिक्स में। नाउ example, I get sick during summer season. I would like to speak regarding healthy food. My project work is still pending. I think I can pass the exam easily considering my hard work. Now double preposition. तो कौन से double preposition होते हैं? Double prepositions are words having two prepositions joined together to make a whole new one. दो प्रीपोजिशंस को हम लोग एक जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, टू मेक अ होल न्यू वन, सच एज इनटू। इन और टू को जोड़ के हमने इनटू बनाया। ऑनटू, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, विद इन, विद एंड इन। तो ये डबल प्रीपोजिशन है, पर इनका जो मीनिंग है वो एक नया मीनिंग है। फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज ऑफ, एक्सेट्रा। We need to solve 3 questions out of 5. हमें 5 में कितना सॉल्व करना है? 3 करना है। We won the game just because of his performance. उसके परफॉर्मेंस के कारण हम गेम जीत गए। आई नीड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट विद इन अ डे। नाउ प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब। बहुत बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, तो आपको उनके यूज करने के तरीके से, जो कि ग्रामेटिकल रूल्स हैं दोनों को यूज करने के, उससे पता चलता है कि ये प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है। देयर आर सम वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड बोथ अ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब
If a word is used as a preposition, it will have a noun or pronoun as an object. क्यों? क्योंकि preposition क्या है, हमेशा noun और pronoun के साथ रहेगा. तो noun और pronoun अगर आपको दिख रहा है उस word के साथ, तो वो preposition है. Adverbs on the other hand do not have objects. और adverb के objects नहीं होते. He runs fast. He runs fast. तो run का जब हमने मॉडिफाई किया फास्ट से, तो वहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं. ही रन्स फास्ट. सी स्पीक्स स्लोली, तो वहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं. बट ये जो प्रीपोजिशन है वो क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का. तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्रीपोजिशन रहेगा ही, तो वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. तो ये जो है बिना नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन ही मिलेगा, और जो एडवर्ब है वो यहाँ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे. दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो जो एडवर्ब होते हैं, जो वर्ड एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, वो मॉडिफाई वर्ब को करते हैं, या एडजेक्टिव है अनदर एडवर्ब को करते हैं. तो इजिली पता चलेगा आपको कि ये जो वर्ड है वो एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है या एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. Now, she sat in the armchair. आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ armchair क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इस तरह से आपने देखा, ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है. प्लीज कम इन, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये एडवर्ब है. Now there are only 150 prepositions and we only use 70 of these commonly. टोटल कितने प्रीपोजिशंस है? 150, और उसके हम लोग सिर्फ 70 जो है बहुत कॉमनली यूज होते हैं. सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव लर्न प्रीपोजिशन एंड दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन. So have a good revision of this session so that the other sessions will seem easier for you. Have a good revision of this. I will come again in the next session. Thank you.